موجود مہمان ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ خواجہ محمد یوسف صاحب، آزاد جموں و کشمیر عدالت والعدلیہ کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ان کی وابستگی جو ہے یہ بہت شروع سے ہے اور گرام قدر خدمات ہیں تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی، اور دو کتب کے جو ہیں مصنف ہیں فریڈم کشمیر اسٹرگل میں، اور جو موضوع ان کو دیا گیا ہے وہ ہے امپورٹنس ان رول آف آزاد کشمیر ایز اے بیس فار فریڈم اسٹرگل ان آکوپائڈ کشمیر۔ تو میں انہیں دم سے خطاب کرتا ہوں۔ یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے یہ کافی لمبا ہے، لیکن میں اس کو بہت شارٹ عرصے میں آپ تک اپنی گزارش آپ کو بتانے کی کوشش کروں۔ آزاد کشمیر کو بیس کیمپ کہتے ہیں، لیکن عملاً 42 سال کی تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ اس کو بیس کیمپ یہ کچھ بھی ہے آزاد کشمیر، لیکن بیس کیمپ نہیں ہے۔ اور اس بیس کیمپ کے سلوگن کو آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ لیور کے طور پر استعمال کیا تاکہ اپنی سیاسی دکان چمکائیں، لیکن کشمیر کے کام کو آگے کرنے کے لیے اس بیس کیمپ کو آج تک کبھی استعمال کیا۔ 1967 آزاد کشمیر واز رولڈ بائی اے جوائنٹ سیکریٹری۔ 1970 آزاد کشمیر جو تھا اس پر یونیورسٹی کشمیر سے اس کا ایک جوائنٹ سیکرٹری حکمران تھا۔ 1960 میں خورشید صاحب جب الیکٹ ہو گئے 61 میں، تو اس وجہ سے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا سٹیٹس پہلی دفعہ تھوڑا سا بڑھ گیا، کیونکہ خورشید صاحب کے پریزیڈنٹ ایوب کے ساتھ پرسنل اپروچ تھا ان کا، اور وہ ان کے سیکرٹری بھی رہ چکے تھے، اس لیے اس وجہ سے یہ سٹیٹس آزاد کشمیر گورنمنٹ کا تھوڑا سا بڑھ گیا۔ اور 1970 میں پہلی دفعہ الیکشن آزاد کشمیر ہوا، اسمبلی بنی، اور آزاد کشمیر کا صدر پہلی دفعہ پاپولر سفریج سے الیکٹ ہو کر آیا۔ اس سے آزاد کشمیر کا سٹیٹس جو تھا گورنمنٹ کا یہ ضرور بڑھ گیا، لیکن نہیں بیسک ڈیموکریسی سخت میں تھی۔ 1970 میں تو پورا الیکشن ہوا عدل بیسس پر سفریج کے بیس پر، اور اسمبلی بنی، اور سردار کوئین صاحب الیکٹ ہو کر آ گئے ایز پریزیڈنٹ جنرل سفریج کے بیس پر، اور اس سے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا سٹیٹس تو ضرور بڑھ گیا، لیکن اس سے کشمیر کو اس آزاد کشمیر کو بیس کیمپ بنانے میں کوئی فرق نہیں۔ میں اس کے لیے الزام نہیں دیتا آزاد کشمیر کی حکومتوں کو، اس لیے جیسے آپ کو میں نے کہا کہ 1970 تو جوائنٹ سیکرٹری کا رول تھا، اس کے بعد آج تک صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی اپنی کوئی آرمی نہیں، آزاد کشمیر گورنمنٹ کی اپنی کوئی فارن پالیسی نہیں ہے، اور آزاد کشمیر گورنمنٹ کا یہ حال ہے، یہ ایک گورنمنٹ ہے انڈیا اینڈ پاکستان میں، آئی چیلنج اینی بڈی ٹو کانٹیکٹ، کہ جس کی آمدنی سالانہ 50 کروڑ ہے، لیکن ملازموں کا خرچ 1 ارب 20 کروڑ، 2 ارب 20 کروڑ، 1 ارب 20 کروڑ۔ That is development builder. I am talking of non-development builder. Please don't try something like that. 50 کروڑ روپے آمدنی آزاد کشمیر کے سالانہ، لیکن خرچ اس کا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ ہے 1 ارب 20 کروڑ روپیہ، اور 70 کروڑ روپیہ جو ملازموں پر خرچ ہوتا ہے یہ پاکستان پر آزاد کشمیر کا ٹیکس پیئر، آزاد کشمیر کا انڈائریکٹلی اور پاکستان کا ٹیکس پیئر ڈائریکٹلی۔ اس لیے آزاد کشمیر نے اس تحریک آزادی کو آگے کرنے کے لیے ماسوائے بیانات دینے کے، زوردار تقریریں کرنے کے لیے 50,000 کی آرمی کسی نے ریز کرانا، کسی نے 1 لاکھ آرمی ریز کرنے کی بات کی، تاکہ وہ بیچارے دیکھتے رہے، اس سے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا ایک اور ریزن کہ انڈین پاکستان میں کوئی پروونشل گورنمنٹ مرکزی گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر وہاں پتے بھی نہیں ہل سکتے کسی پروونشل گورنمنٹ۔ یہ آزاد کشمیر کا بھی حال ہے، یہ پاکستان کی پروونشل کا بھی حال ہے، اور یہ انڈیا کی پروونشل کا بھی حال ہے، جس کو اسٹیٹ کہتے ہیں۔
सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत पावर है और उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता किसी भी प्रोविंस में आजाद कश्मीर में। लेकिन मुझे ये शिकायत नहीं, मैं क्योंकि यहाँ रहा हूँ 1949 से, आजाद कश्मीर में रहा हूँ मैं 1949 से लेकर 1981 तक, मुझे हालात का पता है। मैं इनको ब्लेम नहीं करता इसलिए कि ये कुछ कर नहीं सकते थे इस मामले में एक्चुअली कुछ, लेकिन दो बातें आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट और आजाद कश्मीर के इंतजाम कर सकते थे जो वो भी नहीं। एक वो ये बात कर सकते थे कि पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन को बिल्डअप करे कश्मीर कॉज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के गवर्नमेंट इट इज नॉट अनएबल टू आस्क टू द पीपल ऑफ कश्मीर, वी हैव नो रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल पार्लियामेंट। हमारी कोई नुमाइंदगी पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान गवर्नमेंट हमारे सामने जवाबदेह नहीं है, और कोई गवर्नमेंट अगर जवाबदेह होती है, कुछ डरती है, कुछ सुनती है, तो उनका सुनती है जो उसके वोटर होते हैं, जो उसको इलेक्ट करते हैं, दैट इज द पाकिस्तान। एक हमारी पॉलिटिकल लीडर्स ये कर सकते थे कि पाकिस्तान में जाकर पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करते, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करते, ताकि वो कश्मीर के बारे में कोई एक्टिव पॉलिसी फ्रेम करते। ये भी। और दूसरी बात जो कर सकते थे आजाद कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को ये था कि वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को ऑर्गेनाइज करते इंडिया के खिलाफ। मुझे कतई इत्तेफाक है अपने बेटे के साथ, जो his father has been a close friend of mine, डॉक्टर साहब, ये सोचना कि अमेरिका एंटी मुस्लिम है, अमेरिका फलान है, वेस्टर्न, ये फैले चीज है। अमेरिका को दाद दे, अमेरिका के लोगों को, बरतानिया के लोगों को, वेस्टर्न यूरोप के लोगों को दाद दे। 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दुनिया की किसी आजादी की तहरीक पे हिस्सा लेना, शामिल होना सादत समझते हैं। जो हम मुसलमानों की मूवमेंट है पार्टनरशिप नहीं करेगी, नो, वो समझते हैं सेक्रेटरी है, इस पर कदम मिलाना, इस पर पैसा देना, इस पर आवाज उठाना, वो समझते हैं कि ये नेक काम है, ये इंसानियत के लिए नेक काम है, इस दुनिया के लिए नेक काम है। इसलिए ये तो कर सकते थे हमारे लीडर, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, कि वहां जाकर पब्लिक ओपिनियन रेज करते इंडिया के खिलाफ, हम प्रेशर बिल्ड करते दुनिया में। दे हैव फेल्ड टू डू दैट। और इसलिए ये हमारी गवर्नमेंट आज तक कुछ भी नहीं कर सकती, ये सिर्फ तकरीरें करते रहे, बयान देते रहे, लेकिन अमलन ये कश्मीर की आजादी को आगे करने के लिए कुछ नहीं करते। अब एक बात देखिए, एक इल्जाम हम पर लगता है कश्मीरियों पे कि कश्मीरियों ने आज तक ये ब्लड शेडिंग वाली तहरीक शुरू की। अभी किसी दोस्त ने कहा, सॉरी डाइग्रेशन एक बार मुझे करना पड़ेगा इस पे, किसी दोस्त ने अभी तकरीर में कहा था कि महाराणा प्रताप सिंह ने, हरि सिंह ने बताया, एक फील को मैंने पढ़ा कोर्टी के किताब में, कि मेरे दादे ने रेस की थी, छोटे से कोई 10, 20, 30, 40, 50 कश्मीरी मुसलमान भर्ती किए थे और उनको जम्मू भेजा, और उन्होंने कहा मेरे अपने अफसर को कि हमें सिपाही दे दो पुलिस के, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, उसको डिसबैंड कर। मैंने इसको बड़ा एग्जामिन किया, और ये बात नहीं कि उनको भेजते थे जम्मू, उनको भेजते थे जम्मू ताकि उनको भेजे कहाँ, नॉर्थन एरिया में जानते थे। कश्मीरी होशियार, इसमें कोई शक नहीं, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, कहते हैं यार वेरी इंटेलिजेंट पीपल, वेरी इंटेलिजेंट रेस। मैं कहता हो सकता है सच हो, उसने 50-100 आदमी रेस किए हो, उनको भेजो, और उन्होंने बजाय बेगार को जाने के, जहां से हमारे भी खानदान के कई लोग हैं, कोई वापस नहीं, 1% लोग उस बेगार से वापस आए हुए। उन्होंने बहाना किया, बेस्ट बहाना जान छुड़ाने का, सरकार हमें सिपाही दे दो जो हमारी देखभाल करेगा, तो उसने इसलिए उनको रिलीज कर दिया और उनकी जान छूटी। तो असल बात ये जो कहते हैं हमने क्यों नहीं फाइट की, मैं आपको बताऊं, 1961 से लेकर शुरू हो गया कि कश्मीर वैली से नौजवान आने शुरू हो गए, मुजफ्फराबाद, पुंछ, आजाद एरिया, दे ट्रिकल थ्रू द बॉर्डर। वो आते क्यों थे? 18 साल के नौजवान, 20 साल के नौजवान, 15 साल के बच्चे जैसे आजकल आ रहे हैं, उन्होंने आते क्या, हमको हथियार दो और हमको ट्रेनिंग दो। लेकिन हुआ क्या, उन सबको गिरफ्तार किया गया, उनको मुजफ्फराबाद के किले में, मुजफ्फराबाद के जेल में, दुलाई जेल में और जेल में रखा, और आप यकीन करें मैं सच कहता हूँ प्लेटफॉर्म से, उनको मार मार के उनकी चमड़ी उतार, ताकि ये मूवमेंट बंद हो जाए वहां से आने वाले लोगों की। और मेरे भाई ने बल पता क्या, मुझे यही कहा गया, हम इसलिए ऐसा करते ताकि ये मूवमेंट वहां से आने वालों की बंद हो। 4-4 साल, 5-5 साल वो लोग जेलों में
इस तरह से वो जो मूवमेंट अब चली है ये स्टॉप होगी उस वक्त सिर्फ एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ एंड आई चैलेंज एनीबॉडी फ्रॉम एनीवेयर इन दिस कंट्री, मुझे एक इंस्टेंस बताए कोई 1945 की बड़ी जंग रेजीम के बाद दुनिया के किसी कोने में गुरेला वार फॉरेन बेस के बगैर शुरू हुई और चली, एक इंस्टेंस कोई नहीं। आप इंडो चाइना को ले लें, आप वेस्टर्न यूरोप इसको अफ्रीका को ले लें, आप साउथ अमेरिका को ले लें, एक इंस्टेंस कोई नहीं दे सकता जहाँ कोई गुरेला मूवमेंट वहां के लोगों ने फॉरेन बेस के बगैर चलाई हो। वो कश्मीरी को फरिश्ता है, वो जब आएगा इंडियन सोल्जर वो तो गायब हो जाएगा। How can Kashmiri start a guerrilla warfare without a base in Pakistan or Azad Kashmir? वो बेस अवेलेबल नहीं था। अब देखा आपने, अब छोटा सा बेस अवेलेबल है, फ्रेंडली हैंड्स है थोड़े बहुत जो अचार देते हैं, थोड़े से पैसे देते हैं, थोड़े से कपड़े देते हैं, टेंडेंस में मेहमान रखते हैं। अब देखें कैसे कश्मीरी वही नौजवान जिनके बारे में कहते हैं आप सब चीज चूज करती, अब वही कश्मीरी चूज करने वाला नौजवान आप देखें किस तरह से वो किस तरह से कुर्बानी दे रहा है कि सब मुझे हैरान है ये कश्मीर जिसे तवक्कुल नहीं थी। एक 15 साल का नौजवान आज से 10 महीने पहले क्रॉस करके आया, वो रावलपिंडी मेरे दोस्त के घर गया, उसका नेबर था उस शहर में, शहर का नाम नहीं बता सकता, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मेरी एज का वो दोस्त है जहाँ बैठा था, उसने मुझे कहा कि 15 साल का बच्चा था, उसको घर पर आया कहने का कि मैं आपका, मैंने कहा तुम कौन है, कहने का मैं फलां का पोता हूँ, उसके दादा कोई जानता था मैं उसका फलां का पोता हूँ, तो उसका नेक्स्ट दिन कहने का बैठा, उसको मेरे बातों में देखा, देखो ये तुम्हारे पेरेंट्स जो है ये तुमको खून बहाने से नहीं डराते रोकते, तो उसने जवाब दिया 50 साल के बच्चे ने they dare not obey our orders। तो मैं कह रहा था कि अब जब जहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट रिस्पॉन्स है तो वही कश्मीरी नौजवान जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे ये होगा, लेकिन जिसके बारे में इकबाल ने कहा था वाह आवाज सूर मिलते अब खाते कबूल से वो मिलत उठ खड़ी होगी और उठाई। इसलिए ये बात इल्जाम लगाना कि कश्मीरी कुछ नहीं करते, खुद तो सपोर्ट देते नहीं थे, खुद तो जो आते जिसके उनका कंधा उतारते थे आप लोग और फिर कहते कि कुछ करते नहीं थे, इसलिए ये बात गलत है। आप सपोर्ट दें, आप हमें बेस प्रोवाइड करें, आप हमसे कम्युनिकेशन दें। अभी क्या कश्मीर बड़ी तकलीफ है मेरे बारे में क्या बातें, ये 7 दिन के बाद आप भी भूल जाते, मैं भी भूल जाऊंगा दुनिया में। So we have to do something practical today in this conference, भाई इस कानून तकलीफें करते हो और आप लोग। अच्छा एक और बात इम्पोर्टेंट ऐसे I consider myself responsible citizen कहनी चाहिए वो ये है कि कश्मीरियों को कंसल्ट कभी नहीं है। एक कश्मीरी प्रावल खुद या कोई खानदार सुकूर लबरन या कोई खानदार सुकूर लबरन चमरन कहता बोल दे रहा